Ih, succeda!
मारे चलो सुनिए, आचार्य भगवान मीठी वैसी गुजराती भाषा के अंदर कुछ कह रहे हैं, आप शांति से सुनने का प्रयत्न कीजिए। भाग्यशाली आचार्य भगवान ये कह रहे कि आप अब तक इधर 2 साधु भगवान को देखते थे, कई बार 3 को देखते थे, कई बार 4 को देखते थे, पर तो आज आपको लगता होगा कि आज 5 साधु भगवान हैं। तो भाग्यशाली ये जो महाराज साहब है उनका नाम देव श्रवण विजय जी महाराज साहब है, जो मेरे भाई महाराज साहब है, जिनका भी चतुर्मास गोरेगांव के अंदर है। ओंकार सूरी समुदाय के यशो विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब की मिश्रा में उनका चतुर्मास जोरदार शानदार तरीके से चल रहा है, और वो भी बहुत बड़े प्रवचनकार है, बहुत जोरदार प्रवचन इत्यादि देते हैं। तो भाग्यशाली पहली बार दीक्षा के बाद पहली बार हमारी और उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि हम गए थे साउथ में और वो गुजरात, महाराष्ट्र, मारवाड़ इत्यादि इलाके के अंदर शासन का डंका बजा रहे थे। तो भाग्यशाली मुंबई के अंदर इस बार पहली बार करीब 9-10 साल के बाद पहली बार उनकी मुलाकात हमारे साथ हुई है। तो भाग्यशाली आज उनको हमें सुनना है, बहुत जोरदार प्रवचन देते हैं। तो भाग्यशाली उनको आज हम सुनते हैं। भाग्यशाली वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम गुजराती भाषा का इस्तेमाल करेंगे। भाग्यशाली परंतु वो एकदम मीठी है, आपको मालूम पड़ जाएगा, पता चल जाएगा। शांति से सुनिए वो क्या कह रहे, हम सुनते हैं। श्रेया मंगल केली सद्मा श्रीयुक्त चिंता मणिपार्श्वनाथ दुर्वार संसार भयाच रक्ष मोक्षस्य मार्गे वरसात्। एक पिता પોતાની દીકરીને લઈને એક ગામથી બીજા ગામ જઈ રહ્યા છે। વાત એ સમયની છે કે એ જમાનામાં પુલનું બાંધકામ થયું નહોતું। એક ગામથી બીજા ગામ જવા માટે વચ્ચે નદી આવે છે, નદીને ઓળંગવા માટે નાવની અંદર બેસવું પડે છે અને નાવમાંથી નદી ક્રોસ કરવી પડે છે। નાવની અંદર પિતા અને પુત્રી બંને બેઠેલા છે અને ધીમે 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 નદી પસાર કરી રહ્યા છે। જ્યારે વચમાં નાવ પહોંચી અને નાવ હાલત ડોલક થવા લાગી। એવી હાલત ડોલક થવા લાગી, પિતાને ચિંતા થઈ ગઈ કે આ નાવ સામે કિનારે પહોંચશે કે કેમ, બહુ મોટો સવાલ છે। પિતાને ચિંતા પોતાની નથી, પિતાને ચિંતા કોની હોય? દીકરી। દીકરીની चिंता છે, મારું જે થવાનું હોય એ થાય, દીકરીને ઊની આંચ પર ના આવી જોઈએ। આ જ ફિકર પિતાના હૃદયમાં છે। અને પિતાએ દીકરીને કીધું, જલ્દી બેટા મારો હાથ પકડી લે, મારો હાથ જલ્દી તું પકડી લે। ક્યારે આ નાવ હાલત ડોલક થઈ રહી છે ને ઊંધી પડશે ખબર નહીં પડે, મારો હાથ પકડી લે, ગમે તે રીતે હું તને સામે કિનારે પહોંચાડી દઈશ। દીકરી સાંભળતી નથી। બીજી વાર પિતા કહે છે, બેટા હાથ પકડી લે, આંગળી સામે ધરે છે। હજી પણ દીકરી આગળ વધતી નથી। પોતાની જગ્યાથી
એક ઇંચ પણ એ ઊભી થતી નથી, ત્યાં ને ત્યાં બેઠેલી છે. 2 વાર કીધું, ના સાંભળ્યું. ત્રીજી વાર કહે છે, બેટા મારો હાથ પકડી લે. હજી પણ એ સાંભળતી નથી અને પિતાને થોડુંક વધારે ચિંતા થઈ ગઈ, કેમ આજે આ સાંભળતી નથી. આમ તો હું એકવાર કહું ને તરત સાંભળી લે, ક્યારેક તો મારે કહેવું પણ ના પડે અને મારી મનની ઈચ્છા એ પૂર્ણ કરી લે. આજે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? પિતા પુત્રની નજીક આવે છે અને તરત એનો હાથ પકડી લે છે. આજે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? મનમાં અંદરમાં વિચાર ચાલે છે, પણ અત્યારે સમય નથી પૂછવાનો. હાથ પકડી લે છે. એક હાથે દીકરીનો હાથ પકડ્યો છે પિતાએ અને બીજા હાથે હલેસા મારી રહ્યા છે. ગમે તેમ કરીને યેન કેન પ્રકારેણ પોતાની નાવને ધીમે 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 કિનારા તરફ લઈ જાય છે. જેવો કિનારો દેખાય છે, અડધી ચિંતા ઓછી થઈ જાય છે. હજુ વધારે મહેનત કરું, હજુ વધારે મહેનત કરું અને ત્યાં પહોંચી જાઉં. લેસા મારતા જાય છે. એક હાથમાં દીકરીનો હાથ છે, બીજા હાથમાં હલેસા છે. મારતા જાય છે અને નદી કિનારે હેમખેમ પહોંચી જાય છે. ઉતરી જાય છે નીચે. કિનારા ઉપર પહોંચ્યા પછી સૌથી પહેલો પ્રશ્ન દીકરીને પિતા કયો પૂછે? બરાબર છે, બોલો. હાથ કેમ તે ના પકડ્યો? મેં તને હાથ આપ્યો અને છતાં તે હાથ કેમ ના પકડ્યો? દીકરીને આ જ પ્રશ્ન પિતાએ પૂછ્યો. કિનારાથી થોડોક આગળ વધી ગયા છે અને દીકરીને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો. પહેલી મિનિટમાં દીકરી જવાબ આપતી નથી. બીજી મિનિટ થઈ, ફરી પાછો આ જ પ્રશ્ન. આવું તે કર્યું કેમ? થોડો અવાજ મોટો થઈ ગયો છે, લાઉડલી બોલે છે. અંદર ચિંતા છે, કદાચ ના બનવા જેવું થઈ ગયું વાત તો. દીકરીને કહે છે તે આવું કર્યું કેમ? અને દીકરીએ એટલો મસ્ત જવાબ આપ્યો જે આપણા માટે આનુષંગિક છે. દીકરીએ એટલું જ કીધું, પિતા હું તો 7 વર્ષની છું ખાલી. તમારો હાથ જો મેં પકડ્યો હોત ને તો કદાચ આ પાણીનો વહેણ એટલું બધું જોરદાર આવત, પાણીનું મોજું ઉછળત અને નાવ થોડી હાલત ડોલપ થાવ ને તો મારી શક્તિ કેટલી, તમારો હાથ કદાચ છૂટી જાત. મારાથી તમારો હાથ કદાચ છૂટી જાત, કારણ કે મારી શક્તિ કેટલી તમારો હાથ પકડવાની. પણ મને વિશ્વાસ હતો કે અગર જો તમે મારો હાથ પકડી લો તો ગમે તે રીતે આ આખી નદી પસાર તમે કરાવી જ લેતે. માટે મેં ના પકડ્યો, તમને મારો હાથ પકડવા દીધો અને મને વિશ્વાસ હતો કે હું કરી દઈશ. આપણા માટે પણ દેવ અને ગુરુ આનું કામ કરે છે. પ્રભુની પરમાત્મા ભક્તિ સ્વરૂપ આજે આપણે રથયાત્રા પસાર કરી, રથયાત્રા આપણે શરૂ કરી અને એનું પૂર્ણાહુતિ પણ થઈ ગઈ. આ રથયાત્રા શેના માટે? એક જ પ્રશ્ન, આ રથયાત્રાનો પાછળનું પ્રયોજન શું? શેના માટે આપણે રથયાત્રા કરીએ છીએ? શેના માટે? શાસનની પ્રભાવના માટે. એક્ચ્યુઅલી શાસનની પ્રભાવના માટે રથયાત્રા કરીએ છીએ એ સાચું છે, પણ અડધું સાચું છે. આખું સાચું એ છે કે પર્યુષણ પર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહાપર્વની આરાધના હે પ્રભુ અને હે ગુરુ આપની કૃપાથી નિર્વિઘ્ને પરિપૂર્ણ થઈ. એવી રીતના આરાધના થઈ કે આખી જિંદગીનો એક અમૂલ્ય અવસર અમને મળી ગયો. અને આવી આરાધના પ્રભુ તારી કૃપા અને ગુરુ તારા આશીર્વાદ સિવાય બની જ ના શકે. અને માટે પ્રભુ તારા દર્શન કરવા માટે દિયાના આનંદ સાથે, અહોભાવ સાથે, ઠાઠમાઠથી વાસ્તે ગાસ્તે તારા દર્શન કરવા આવીએ છીએ, કારણ કે અમારા આનંદની કોઈ સીમા નથી. પ્રભુ તે અમારી ઉપર આટલી મોટી કૃપા કરી, જે કૃપાને અમે લાયક નથી, જે કૃપાને અમે પાત્રિત નથી, અને છતાં આટલી મોટી કૃપા. હે પ્રભુ અને હે ગુરુ, તે આટલી મોટી બસ એ પ્રભુની કૃપા અને ગુરુના આશીર્વાદથી ઋણ મુક્ત થવા માટે આખો અવસર આપણને પ્રભુએ આપેલો છે. આપણા કર્તવ્ય રૂપે કે આ રીતે પ્રભુની રથયાત્રા કરી. ગુરુ ભગવાન એ આપણા માટે આ કામ કરે. પ્રભુને આપણે કદાચ ઓળખી શકશું, પણ એ ગુરુ વગર આપણી ઓળખાણ અધૂરી રહેશે. ગુરુ બિન કોણ બતાવે જ્ઞાન, ગુરુ બિન કોણ બતાવે માર્ગ. ગુરુ એ આપણને તરવા માટે નાવ સમાન છે.
આગળ વધીને ગુરુ એ આપણને કરવા માટે સારથી સમાન છે. અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણ મળી ગયા માટે ભારત એ આખું મહાભારતનું યુદ્ધ જીતી ગયા. અગર જો શ્રી કૃષ્ણ એના પક્ષે ના હોતે તો ઇતિહાસ કંઈક અલગ જ હોત. અગર જો અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણ ના મળ્યા હોત કે આખો ઇતિહાસ અલગ હોતે. અર્જુનની જીતમાં સૌથી મોટો ફાળો કોનો? શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે ગુરુ બનીને આયા છે અને સારથીનું સ્વરૂપે આયા છે. આખું યુદ્ધ જીતાડી દીધું. આપણા માટે પણ આ સંસાર રૂપી સમુદ્રને તરવા માટે આપણને બધાને તારવા માટે કોની જરૂર છે? ગુરુની જરૂર છે. અને એવા ગુરુનું સાનિધ્ય આપણને સૌને મળી ગયું. ખરેખર ઘણા બધા આપણે બળભાગી છીએ. તમે બધા તો 4 મહિના તપ પ્રભુજી માર્શક અને સંયમ પ્રભુજી માર્શક ભાઈ માર્શકને બહુ સારી રીતે સાંભળ્યા છે. આજે અમારા બધાના જે ગુરુ ભગવાન એ આચાર્ય ભગવંતની વાત કરવી છે. મારું સૌભાગ્ય છે કે મારું બાળપણ એમના ખોળામાં અને એમના ચરણમાં વીત્યું છે. અગર જો એમના ચરણમાં એમની કૃપાથી મને એમનો ચરણમાં સ્થાન જો ના મળ્યું હોત તો આ પાઠ ઉપર બેસવાનો અધિકાર કદાચ મેં ગુમાવી દીધો. એટલી મોટી કૃપા ગુરુ ભગવંતે મારી ઉપર કરી છે. મારા અંદરની કોઈ જાતની કોઈ જ પાત્રતા નહીં. એક પણ લક્ષણ નતા કે ઉપાસનાની અંદર પગ પણ મૂકી શકું અને ટકી શકું. માત્ર જો એક વસ્તુનું કારણ બન્યું હોય તો એ ગુરુની કૃપા છે. ગુરુ શું કામ કરે છે ને એની આજે વાત કરવી છે. ગુરુ હંમેશા કરુણાનું કરે છે. એમની કરુણાનું તોલે કોઈ આવી ના શકે. કદાચ એ અનુગ્રહ કૃપા કરે કે નિગ્રહ કૃપા કરે, શિષ્યનું એકાંતે કલ્યાણ થાય. એવા ગુરુ ભગવાન આપણને મળ્યા છે. બહુ બળભાગી હું છું કે 9 વર્ષે મને એમના દર્શન મળ્યા છે. એમના દર્શન કરવા માટે એટલો બધો તલપાપીટ હતો કે જ્યારે પણ મુંબઈમાં આવવાનું થયું ચાતુર્માસથી પહેલાથી જ સમાચાર મેળવતો રહેતો હતો કે ગુરુ ક્યાં છે, ગુરુજી ક્યાં છે, દર્શન કરવા એકવાર તો કમસે કમ જવું. પણ ચાતુર્માસની શરૂઆતમાં જ એવા સંજોગો ગોઠવાઈ ગયા કે ગોરેગામમાં ચાતુર્માસ પહેલા જ 15-20 દિવસ રોકાવાનું થઈ ગયું અને એનાથી બહાર નીકળી શકાયું જ નહીં. ચાતુર્માસની શરૂઆત થઈ ગઈ. એની પહેલા એક વખત અવિજ્ઞા પાઠ સુધી તો આવી જવાનું થયું, લોહર પડેલ સુધી. પણ શરીરે સાથ ના આપ્યો. એટલો બધો ભટકાયો તાવમાં અહીંયા સુધી આવી ના શક્યો અને પાછું ગોરેગામ જવાનો અવસર આવી ગયો. પણ હૈયામાં એક જ વાત હતી કે ગમે તે થાય, જે ગુરુની કૃપાથી આટલું સરસ મજાનું સામાન્ય જીવન મળ્યું છે એમના ચરણમાં એકવાર તો આ હૈયું અને આ મસ્તક ઢાળવું જ છે. અગર જો એ ના મળે તો બીજું મારું સૌભાગ્ય પણ શું. અને પ્રભુએ પ્રાર્થના સ્વીકારી. ભક્તિ યોગાચાર્ય યશોવર્યશ્વરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબને વિનંતી કરી કે સાહેબ પર્યુષણ પર્વ બાદ આપ જો અનુજ્ઞા આપતા હોય તો ગુરુ ભગવંતની સેવા માટે એક દિવસ માટે કમસે કમ જવાની ભાવના છે. ગુરુ ભગવંતે અને ગુરુજીએ સહજ સંમતિ આપી જઈ આવો. બહુ બધા ઉપકારી છે તમારા માટે. સૌથી મોટા ઉપકારી એ ગુરુ છે અને એ ગુરુ ભગવંતને અમારી બધાની વંદના કહેજો અને જઈ આવો. જે રીતના અનુકૂળતા હોય એ રીતના ત્યાં રોકાજો અને એની સેવા કરજો. સહર્ષ આજ્ઞા મળી અને અહીંયા આવવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. સવારે જ્યારે અહીંયા આવવાનું બન્યું ને સૌથી પહેલા તપ વિપ્રક માસબ અને ભાઈ માસબને મળ્યો. એમને મળ્યા ભાઈ તરત જ એ પ્રશ્ન પૂછ્યો, ગુરુજી ક્યાં? ખ્યાલ હતો ચાતુર્માસ પ્રાર્થના સમાજમાં છે અને ભાઈ મહારાજ તો અહીંયા છે. પણ મને એવો ખ્યાલ હતો કે આજે બધા અહીંયા મળશે. ક્યાંય ગુરુ ભગવંતને જોયા નહીં. ગુરુ ભગવંતની છબી અહીંયા સરસ મજાની કંડારેલી છે. એ ગુરુની છબીને જોઈને હૈયું ગદગદિત થઈ ગયું. એટલું બધું ભરાઈ ગયું કે બસ જલ્દી આ ગુરુજીના દર્શન ક્યારે થાય ને ક્યારે મળે. ડોક્ટર વિજય માર્શક આમ તો જોવા જઈએ ને તો મારા તો બધા ઉપકારી છે. ભાઈ માર્શક પણ ઉપકારી છે. આ ડોક્ટર વિજય માર્શકે એમને પણ મને એટલો બધો સાચવ્યો છે. ઘણી બધી ભૂલો આ ગુરુના ચરણમાં રહેતા કરી છે. છતાં હંમેશા પ્રેમથી મને નવાજ્યો છે. હંમેશા મને પ્રેમથી બીજવ્યો છે. ચિંતા ના કર, તૈયાર થઈ જવાશે. ચિંતા ના કર, તૈયાર થઈ જવાશે. મારા તો બધા ઉપકારી છે. એકચ્યુઅલી આ જે મારા ભાઈ માર્શક છે ને એમાં ડોક્ટર વિજય માર્શક છે એ પણ મારા ભાઈ માર્શક છે. એમનો અનુગ્રહ છે મારી ઉપર કે એમને મને ભાઈ તરીકે સ્વીકાર્યો છે. બાકી મારી એવી કોઈ લાયકાત નથી કે મને સ્વીકારી શકે. આ બધા જ ગુરુ ભગવંતો એટલા બધા વિશાળ હૃદયના છે કે હું ગમે તેવો હોવા છતાં હંમેશા મને સહજ સ્વીકારે છે.
હંમેશા મને આશીર્વાદનો ધોધ એવો વરસાવે છે કે હું જ્યાં પણ હોઉં ને ત્યાંથી મારી પ્રગતિ અને ગતિ આગળ ને આગળ વધતી જાય છે. આપણે બધા આજે એ જ ગુરુ ભગવંત નિશ્રામાં બેઠા છીએ અને ગુરુના ચરણે એ જ વંદના કરી કે ગુરુ ભગવાન પેલી દીકરી પિતાજીનો હાથ તો એને પકડ્યો નહીં, કારણ કે એને પોતાને ખબર હતી કે મારી શક્તિ કેટલી પિતાનો હાથ પકડી રાખવાની. પણ ગુરુજી આજે એ કહેવું છે કે ક્યારેક આ અહંકાર રૂપી અંદરનો રાક્ષસ એવો ઉગી જાય છે ને કે એ અહંકાર એ ગુરુના શરણથી વિમુખ કરી દેતો હોય છે, અને છતાં એ અહંકારને આપ નજરઅંદાજ કરીને પણ કૃપાની એવી હેલી વરસાવો છો અને અમારો હાથ આપ પકડી રાખો છો. ખરેખર આપના ચરણમાં જેટલી પણ અમે અંજલિ આપીએ એટલી ઓછી છે. બસ એ જ વિનંતી કરીએ કે જે રીતના કૃપા વરસાવતા રહો છો, ગમે તે થાય, આપના અંતરમાં અમારા બધાનું જે સ્થાન છે એ ક્યારે પણ આપે ગૌણ નથી કર્યું. આનાથી મોટી કૃપા કેવી ગુરુના, જે ગુરુ માત્ર પ્રભુ અને પ્રભુની આજ્ઞામાં મસ્ત રહેતા હોય, એમના હૈયામાં આપણું સ્થાન એટલે કેટલું મોટું બળભાગી કહેવાય, આપણે કેટલા મોટા આપણે અહોભાવી થઈ ગયા કહેવાય. બસ આજે ગુરુજીને એટલી જ વિનંતી કરવી છે કે હંમેશા ચરણમાં અમારું સ્થાન રાખજો. ગમે અમે લોકો ભૂલો કરી શકીએ, અમારી ભૂલો થઈ જાય, આપ કાન પકડીને પણ ભૂલોને અમને કહેજો અને નજરઅંદાજ કરીને હંમેશા આપની કૃપાથી પાત્રિત રાખજો. આજ અંતરની અભ્યર્થના છે. આપણે બધા ખરેખર બળભાગી છીએ. આ ગુરુજીની જેટલી પણ આપણે સેવા કરીએ ને, ગુરુજીને માત્ર અગર જો કોઈ પણ એક લક્ષણ, આમ તો ગુરુજીને જેટલા પણ વિશેષણ આપવા હોય ને એટલા ઓછા જ પડે. અગર જો આપણે એક વિશેષણમાંથી એક જ વિશેષણ આપણે સૌથી મોટું આપવું હોય ને તો એક છે પરાર્થ રસિક. એમને ક્યારેય પણ પોતાનો સ્વાર્થ જોયો નથી, હંમેશા પરાર્થ કરવા માટે તત્પર હોય છે. હમણાં વળઘોડાની અંદર જ જોયું, સાહેબ પોતે પિક્ચર ઉપર બિરાજમાન હતા અને ધીમે ધીમે રથયાત્રા આગળ વધતી હતી. ઘણા બધા સાધ્વીજી ભગવંતો એક પછી પસાર થતા હતા. એ સાધ્વીજી ભગવાન આચાર્ય ભગવાન એટલે કે આપણા સાહેબજીને એ વંદન પણ કરતા હતા. ત્યારે પણ આ સાહેબે હાથ ઊંચો કરીને આશીર્વાદ નથી પાઠવ્યા. એમને શું કર્યું ખ્યાલ છે? કદાચ આપણે કોઈએ ધારીને જોયું હોત ને તો આપણને ખ્યાલ આવત કે એમની કેટલી નમ્રતા છે. એમને જેટલા પણ સાધ્વીજી ભગવાન ગયા ને એમને હાથ જોડીને એ સાહેબ છે કેટલી મોટી અંદરની લઘુતા કહેવાય. બાકી સાધ્વીજી ભગવંતોને અમે પણ અંદર ના કરી શકીએ, સાધ્વીજી ભગવંતોને અમે પણ આશીર્વાદ આપી શકીએ એવું અમને એવી રીતના પ્રભુની આજ્ઞા છે. તૃતીય પદે બિરાજમાન હોવા છતાં આટલા બધા સંઘોના કાર્ય અને આટલા બધા સંઘના ગુરુ પદે બિરાજમાન હોવા છતાં એક સાધ્વીજી ભગવાન, અનનોન સાધ્વીજી ભગવાન છે, છતાં એમને હાથ જોડીને નમસ્કાર કર્યા. આ જ એમની અંદરની લઘુતા છે. આપણે એમના જીવનમાંથી અને એમના આ ગુણરૂપી સમુદ્રમાંથી આટલું જ અંગીકાર કરવું છે. જ્યારે પણ ગુરુ ભગવાન પાસે આવીએ, આમ છે ને સૂફી સંતોનો એક આખો અલગ જ ઇતિહાસ રહ્યો છે આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં. અત્યારે આખો સૂફી સંતોનો સમુદાય તિબેટ બાજુ, નેપાળ બાજુ વધારે વિચરી રહ્યો છે. એ લોકોના જે આશ્રમો હોય કે ઉપાશ્રય હોય ને એની બહાર એક બોર્ડ માર્યું હોય છે. જેમ આપણે આપણા શૂઝ અને ચપ્પલ બહાર ઉતારવા માટેનું એક બોર્ડ મારેલું હોય છે ને, એ રીતે એમના આશ્રમમાં એક બોર્ડ મારેલું હોય છે, નો માઇન્ડ પ્લીઝ, નો માઇન્ડ પ્લીઝ. એટલે કે ઉપાશ્રયમાં ગુરુ ભગવંતના અવગ્રહની અંદર ક્યારે પણ મગજ લઈને આવવું નહીં, ક્યારે પણ બુદ્ધિ લઈને આવી નહીં, બુદ્ધિને બહાર મૂકીને આવવું. આપણા ત્યાં નિસ્સી આ શબ્દનો પ્રયોગ છે, ખ્યાલ છે ને બધાને? એ શબ્દનો પ્રયોગ ક્યાં કરાય છે? દેરાસરમાં કરાય છે અને બીજા નંબરમાં ઉપાશ્રયમાં પણ કરાય છે.
અમારો સમાચારી છે કે ઉપાસનામાં પ્રવેશ કરીએ ને નિશી 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 બોલીએ, એમ તમારી પણ આ સમાચારી છે કે ઉપાસનામાં પ્રવેશ કરતા ઉપાસના ગેટ આગળ નમસ્કાર કરીને નિશી નિશી શબ્દ બોલવાનો. આ નિશી શબ્દ ઉપાસનામાં કેમ બોલવાનો? નિશી શબ્દ ઉપાસનામાં કેમ બોલવાનો? કેમ બોલવાનો? સંસારની પ્રવૃત્તિ છોડવાની. સંસારની પ્રવૃત્તિ છોડવાની એ તો બરાબર, આગળ વધીને સંસારની વૃત્તિ અને સંસારની જે બુદ્ધિ છે ને એ છોડીને અહીંયા આવવા, એના માટે નિશ્ચિત શબ્દ બોલવાનો છે. આવું આપણે કરીએ ખરા? બસ આજે આ ગુરુ ભગવાન પાસે એ આશીર્વાદ માંગવા છે કે ગુરુ એવા આશીર્વાદ આપો કે આ ઉપાસનામાં આપના અવગ્રહમાં જ્યારે પણ આવવાનું થાય આ બુદ્ધિ અને અહંકાર બહાર મૂકીને આવીએ, માત્ર હૈયામાં ભક્તિ શ્રદ્ધા અને સમર્પણના અંદરની પુષ્પ લઈને આવીએ અને આપના ચરણે અર્પણ કરીએ અને આપ જે અમને અનુગ્રહ કરો એનો અમે સ્વીકાર કરીએ. આ પ્રાર્થના આજે ગુરુ ભગવાનના ચરણે કરવાનું છે. આમ પણ આપણે પર્યુષણ મહાપર્વ બહુ સારી રીતે ઉજવાઈ ગયા, તો ઋણ સ્વીકાર સ્વરૂપે કઈ ગુરુ ભગવતને દક્ષિણા તો આપવી પડે કે નહીં? ગુરુ દક્ષિણા આપવાની હોય કે ના હોય? તમે અને હું, આપણે બધા ગુરુ ભગવંતને એ દક્ષિણા આપવી છે કે ગુરુ ભગવાન અમારો સ્વાર્થ અને અમારો અહંકાર જે હંમેશા અમને રખડાવનારા છે, આ સંસાર વધારનારો, આ સંસારમાં વધારે ને વધારે રખડાવનાર જો કઈ બે ચીજ હોય એક આ છે, અમારો સ્વાર્થ અને અમારો અહંકાર, એટલે કે બુદ્ધિ અને અહંકાર. આજે ગુરુ ભગવાન એવી કૃપા કરો કે અમારી બુદ્ધિ અને અહંકાર આપ લઈ લો અને શ્રદ્ધા અને સમર્પણ અમને ભેટ સ્વરૂપે આપી દો, જેથી કરીને આપ જે પ્રભુની આજ્ઞાના આનંદમાં આનંદને અનુભવી રહ્યા છો, અમે પણ એ આનંદને અનુભવતા આનંદ ધામ એટલે કે મોક્ષ સુખ એને જલ્દી ને જલ્દી પામીએ. બરાબર ને? હા કે ના? બસ આજે ગુરુ ભગવાનને એ જ વિનંતી કરવી છે, શ્રદ્ધા અને સમર્પણ આપ અમને આપો અને બુદ્ધિ અને અહંકાર આપ લઈ લો. બસ આટલું ખાલી થઈ જાય, બહુ મોટો ગુરુનો ઉપકાર બની જાય અને એ ઉપકારને વાગોળતા એ ગુરુની કૃપાના ઋણથી મુક્ત બનતા જલ્દીમાં જલ્દી મોક્ષગામી બનીએ. એ જ અંતરની અભ્યર્થના જિનાગર ઈચ્છા. હવે આપણે મારે જાય છે વેપારી મારે જે છે તો વેપારી બોલો बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो शास्त्र पंडित उदार परम पूज्य आचार्य श्री विजय कनक प्रभु श्री सर जी महाराज साहेब की जय। बोलो भुवन शेखर श्री सर जी महाराज साहेब की जय। बोलो कीर्ति प्रभु श्री सर जी महाराज साहेब की जय। अत्र विराजमान गुरु वंदना चरणों को वंदन करते हुए बादशाह
कहावत है ना, आली रे आली पोजीशन मिला, हाँ पोजीशन मिला, आपण कोण आली? शाश्वत होली आली. तुम्ही कैसा है सगळा? सगळा बड़ा है, सब पर भाग्यशाली. इसके अंदर कहावत है, हर एक जगह में कोई भी व्यक्ति जब तक प्रेम, श्रद्धा और विनय और व्यावच जहाँ पर वहाँ पे होती है ना, वहाँ पे नर्क का वातावरण भी स्वर्ग का वातावरण बन जाता है. वो तो थोड़ा नाइस भी है, मारवाड़ी से ना. जटे न पुगे मारवाड़ी मालगाड़ी, बटे पुगे मारवाड़ी. भाग्यशाली अन्वय कहावत है, जटे न पुंगे मालगाड़ी, बटे पुंगे मारवाड़ी. पूरा भारत में देश विदेश में कोना कोना में विराजमान है. मतलब बैठा है तो भाग्यशाली अन्वय कहने मतलब एक ही चीज है कि मारवाड़ में कतरू डेरिंग है. फिर कटे बन जाए कि फोड़ी खाए कदी नारे. तो भाग्यशाली एड़ा थे लोग हो, लेकिन धर्म में क्यों पाछा रहना? बराबर है कि नहीं? धर्म में कदी पाछा रहना है नहीं रहना है. तो एन में ते कदी पण कोई पण व्यक्ति आपने कोई पण करे कि ओके इट्स ओके वो तो धर्म करनु है एड़ी होना की आगे बढ़ने मन में कीधु है. जब तक हमको कहा जाता है, जब आप किसी को प्रेम करते हो ना तो आपकी शक्ति बढ़ती है. जब आप किसी को प्रेम करते हो तो आपकी शक्ति बढ़ती है. जब सामने वाला आपको प्रेम करता हो तो आपकी भक्ति बढ़ती है. जब सामने वाला आपको प्रेम करो तो आपकी भक्ति बढ़ती है. अगर अरस परस प्रेम हो जाए तो आपकी सहन शक्ति बढ़ती है. भाग्यशालियों, तो आपकी सहन शक्ति बढ़ती है. जिनेश्वर परमात्मा श्रवण भगवान महावीर की 22,000 देशना का सार एक में है कि हर एक जीव के प्रति मैत्री भावना राखो, हर एक जीव के प्रति प्रेम राखो. जो को थोड़ो पर उपकार महिला जनदारा सुधी आपला અહીંયાની અંદર કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે પ્રેમ ભાવના, કરુણા ભાવના पैदा नहीं वे. वन टाइम સુધી કોઈ આત્મા અવતાર મેળાનો नहीं है. चाहे कतरापन मासर समर्पण कियो करो, चाहे वो सिद्धि तप करो या अडार्या करो या उद्यान करो या नवानो या चरीपाली संग कतरूपन करो, जनदारा सुधी थोड़ा हृदयની અંદર करुणा भावना और अंदरता उमंगता कोईना बीजाना परते भाव प्रेम भावना मात्र जीव परते जनदारा सुधी नहीं आवे. चाहे कतरा अपन बाह्य तब से करता जाओ बे हनुमान ने कोई क्यों शास्त्र का भवन ने चौकड़ी लगाई. तो भाग्यशाली हर एक जीव के प्रति मैत्री भावना रखनी चाहिए. अपना ये श्रावक के अंदर एक श्रावक श्राविका का ये भी कर्तव्य बोला जाता है. तो भाग्यशाली जिसके अंदर जब तक हमारे अंदर में कोई भी करुणा भावना पैदा नहीं होती है, तब तक हमने किया हुआ कुछ भी हो, कठोर का कठोर पत्थर की तरह रहा हुआ हमारा दिल वो कभी पिघलने वाला नहीं. अनादि काल का हमारा ये संस्कार है, क्योंकि हमने आज दिन तक अपने मन को कभी भी कोई भी चीज के प्रति मैत्री भावना निभाने के प्रयत्न नहीं किया. इसके लिए हर एक जीव निमित्त के कारण निमित्त के बस से कोई ने कोई छोटो मोटो निमित्त होके उसका बाप अपनी ज्वाला को बढ़. भाग्यशाली इसके लिए कहा गया है, आप दूसरे को खराब निमित्त देते हो तो सबसे पहले आप किसी और दूसरे को अच्छे निमित्त देने की प्रयत्न करें. अगर हम किसी के प्रति प्रेम करते, प्रेम मतलब कोई एक दूसरे के नहीं, मात्र जीव और प्राणी के ऊपर करुणा भावना और प्रेम करने की प्रयत्न करो. हर एक जीव के प्रति लाखनीमय भावना रखो, वात्सल्यमय भावना रखने की प्रयत्न करना चाहिए. तब जाते हुए हमारा जो पत्थर रूपी जो दिल है वो एक बार कोमल बनती हुई, उस कोमल बनते उसी में से कादम, भाग्यशाली कहा जाता है कादम में से कमल भी उगता है. पर आपको ये मालूम होगा कि हीरा जो होता है ना, जो गोल्ड होता है ना, वो कहाँ पे मिलता है? पहाड़ के ऊपर टोपे में जो ऊपर डाली के ऊपर बैठा हुआ रहता है क्या? हीरा गोल्ड कहाँ पे मिलता है? जमीन के अंदर.
उसको भी कितना खोदना पड़ता है। सोना तो मिल गया, क्या उसी को लेके आप घर के तिजोरी के अंदर रखते हो क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको भी अग्नि में डालना पड़ता है, अग्नि में से पसार करना पड़ता है। उसी में से कई ना कई चीजों के उसमें से पसार होने बाद में वो 99 कैरेट का वो एक बिस्किट बनता है। तो भागशाली उसी में से साधु जीवन की भी यही परीक्षा है। डगले यानी पगले, हर एक सन हर एक जगह में कहीं ना कहीं ऐसे भी निमित्त मिलते हैं जिसके कारण आर्तधन भी होता है। कहीं ना कहीं ऐसे भी निमित्त मिलते हैं जिसके कारण रुद्र ध्यान भी होता है। लेकिन उसमें से जो व्यक्ति पसार होता है और कहीं उसी में से जो व्यक्ति आगे बढ़ने के प्रयत्न होता है और उसी को लेट गो करते करते हुए ये जो 3 फुट या 4 फुट या 5 फुट या 6 फुट की जो काया है उसके ऊपर आया जो दिमाग है ना, हेड ऑफिस, उठ है उस हेड ऑफिस को वो अंदर लेने की प्रयत्न नहीं करता है, बाहर से आया और बाहर से फेंक देता है। तो भागशाली उसी हिसाब से वो आगे जाती हुई पूजनीय बन जाता है। तो भागशाली कहाँ गया है? साचोरी पट्टी के अंदर में भी दादा गुरुदेव कनक प्रभु श्री सर जी महाराजा ने भी कई ऐसे काम किया है, छोटे बड़ों के भी वहां पर, जिन्होंने आज के दिन पे जो उस टाइम में उन्होंने जो बी बो के गए थे ना, उसमें से डाल बना। किसका? अम्बा का। ये सबको मैंगो पसंद है। किसको नींबू पसंद है? नींबू की तो अच्छा नींबू पसंद है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने चलो नींबू का भी बी बो के गए और अम्बा का भी बी बो के गए और आज वो डाली बनती हुई एकदम बहुत बड़ा फल फ्रूट्स बनती हुई वो उगने के प्रयत्न हुए। कौन बुढ़े कोई हो अपार खाओ फल खाओ वास्ते एंजर आवे रहे कि नहीं आवे रहे? कोई सुमिर जी आवे रहे कि नहीं आवे रहे? तो भागशाली एड़ा, तो भागशाली जब अगर फल खाने की इच्छा हो तो सबसे पहले जो बी है ना उसको सही जगह में बोना जरूरी है। थे लोगों ने सुख सेजे तो सुख सेजे तो क्लब में क्यों फरेगा? अगर तुम थे लोगों ने सुख सेजे तो किट्टी पार्टी में क्यों फरेगा? अगर थे लोगों ने सुख सेजे तो मरीन ड्राइव से क्या बोलते चौपाटी में क्यों फरेगा? अगर थे लोगों ने सुख सेजे मोटे मोटे मॉल बड़े बड़े थिएटर वहां पे क्यों घूम रहे हो? उसके लिए भागशाली अगर आपको सुखी चाहिए आम की तरह बस प्याला रेडियो में चूसने की प्रयत्न करना है तो देव गुरु धर्म के चरणों में जाना चाहिए। कोई ना कोई आराधना साधना करनी चाहिए और ऐसी साधना करनी चाहिए उस साधना में से अपनी आत्मा का भी, आत्मा के अंदर कुछ ना कोई लघुता का एवं संस्कार आ सके और आत्मा के अंदर अगर प्रभुता आ जावे ना तो कभी प्रभु बंदोड़ कभी आत्मा होता नहीं। लेकिन जंदाड़ा आत्मा में लघुता आवे बंदाड़ा ते सोचो कि थोड़ी प्रभुता थोड़ी अंदर ये कोई बाहर कोई प्रभुता देखवारी जरूरत नहीं है। तो भागशाली जितना हो सके प्रभुमय तो भागशाली इस संसार के अंदर में सब कुछ हमने देखने के प्रयत्न किया। पर्युषण के 8 दिन के दरमियान हम सब लोगों ने बहुत अच्छी आराधना साधना करवाने के भी प्रयत्न किया और करवाया भी। यहाँ पर संगीत विशेषज्ञ तब प्रभु विजय जी महाराजा ने भी पर्युषण के दरमियान जो भाई आवता भाई बनो तो मस्त में हालोड़ू है, कोई ना कोई बीजा सच्चा है स्थावन, कोई ना कोई गाँव में प्रयत्न हुए तो आप लोगों को बहुत अच्छा करवाने के प्रयत्न किया होगा। तो उनके भी हमारे ऊपर जैसे ही महात्मा ने कहा उनका नाम ये श्रवण विजय जी महाराजा ने, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी सब उनको भी सपोर्ट किया है, वैसे उन्होंने भी मेरे को भी सपोर्ट किया। भागशाली वो इतने सरल व्यक्ति है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो देखो क्या कोशिश है एक टाइम दो कितना चाहिए इतना तू बोलते मैं लेके आ जाऊंगा, कट्टे बांधने जाओ रे जरूरत नहीं है। मेरा सामेती लेने जब मेरे को बुखार भी आता था ना, बुखार क्योंकि शरीर है, शरीर का भी काम करता है, तो उसके बाद में जब भी बुखार भी आता था कुछ भी ताव भी आता था और एनी टाइम वो गोची लेके पूरा दिन वहाँ पे और हॉस्पिटल मेरा आँख का ऑपरेशन लेजर ऑपरेशन भी हुआ था ना, तब भी साथ में भागशाली उनके अंदर में भी उनकी गुरु भक्ति या प्रभु भक्ति या कोई भी गुरु भाई हो या साधु भगवंत हो, कोई भी श्रावक हो, कोई भी उनके पास में आए, उनकी भक्ति अजब गजब की है। भागशाली भक्ति करते करते भरत बाहुबली को तो हमने उनकी स्टोरी तो कई बार सुना है। तो भागशाली ऐसी उनकी भक्ति भी बहुत अद्भुत की बोली जाती है। जब समय होगा तब देखने के प्रयत्न करें क्योंकि आज टाइम भी हो गया इसके लिए। तो भागशाली ऐसे उनके जो हाथ के अंदर क्या चलती है माला,
और मन में क्या चलते प्रभु। तो ऐसे तो प्रभु से साक्षात उनके जो साधना रूप आप जब देखोगे तो भागशाली देखा भी होगा। तो पूरा दिन देव गुरु धर्म की आराधना करते, पूरा उनके जीवन में एकदम मस्त रहते, वो भी उनकी दुनिया में जबरदस्त विजय, उनका भी उपकार मानता हूँ भागशाली। उसके बाद में जो युवा प्रवचनकार है हमारे गुरु महाराज, जो इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेने के बाद गुरु महाराज ने तुरंत उनको इस पाठ को सौंपने की प्रयत्न किया। जिस दिन दीक्षा हुई भाईंदर के अंदर में, उसी दिन से उनको वहाँ पे भाईंदर यानी कि आपके मुंबई क्या जाला, बस उसी के अंदर तो महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने मतलब मुंबई के अंदर दीक्षा लेने की प्रयत्न किया। तब से उन्होंने जो व्याख्यान की शैली वहाँ पे सुनाने के आरंभ किया, तब से आज दिन तक शासन की प्रभावना करने के प्रयत्न किया। चाहे कोई जगह ऐसा नहीं हो बे, उनके व्याख्यान में कभी कट्टरता नहीं आई। ये देखना, ये 2 मिति वाले, 3 मिति वाले, ये 4 थोई, ये 3 थोई, ये पैचल गज, ये अचल गज, ये दिगंबर, ये श्वेतांबर, ऐसा कभी आपने देखा? 1.5 महीना हो गया, 50 से 52 दिन होने को भी आ गया, कभी ये देखने की प्रयत्न किया। तो भागशाली ऐसे उन्होंने भी, जैसे महात्मा हमारे तप्र संगीत विशेष तप्र विजय जी महाराज साहब ने संगीत की और साथ में प्रभु की आराधना किया है, और ऐसे इन्होंने भी सरस्वती माँ की साधना करते हुए विज्ञान के ऊपर जबरदस्त उन्होंने भी पुरुषार्थ करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हुए। तो भागशाली उनका भी मैं उपकार मानता हूँ, ताकि इन दोनों ने मुझे भी एक बार चांस दिया, जिस चांस के कारण आज चंद्र प्रभु जैसे चंद्र प्रभु के अंदर में संवत्सरी के दिन कितने पोषक 53 पोषक, 3 वहाँ पे 64 परी पोषक भी हुए, और उसके अलावा पूरा दिन पचकान वाले, एकासना, बियासना, अम्बेल, भागशाली इतना बड़ा संघ को भी संभालने के, इन सब का उपकार होने के बाद में आज इतना बड़ा संघ को भी संभालने के प्रयत्न हुआ। और इतना ही नहीं, वहाँ के जो ट्रस्टी महोदय है, जिन्होंने आज दिन तक कभी सामायिक नहीं किया, कभी पोषक नहीं किया है, कभी उन्होंने पूजा भी नहीं किया। मैंने एक बार पूछा था उनको, तुम कभी पूजा करते? उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने उनको पूछा, तुम कभी सामायिक प्रतिवन करते हो? तो उन्होंने को साहिब जी पोजिशन में एक दाड़ो, बस बीजू कभी पोषक प्रतिवन करवानो नहीं। ये व्यक्ति पर रोज प्रतिवन में आगे रहे। ट्रस्टियों ने बात करे, बीजा બધા लोगों ने नहीं, ट्रस्टियों ने खुद बात करे रहा हो। ट्रस्टियों रोज प्रतिवन आवे और वन माते व्याख्यान हाले के व्याख्यान में सामायिक लेने बैठे। बोलो भागशाली इन सब की कृपा से, तो और दादा गुरुदेव कनक प्रभु श्री जी महाराज साहब की कृपा से, और गुरुमास तो आते ही से बेटा अंदर बैठा बैठा रोज आशीर्वाद दे दे करे, जो को अंदर तो कृपा है ही। तो भागशाली इन लोगों की भी कृपा के कारण आज वहाँ पे इतना बड़ा चंद्र प्रभु जिनालय के अंदर, और उतना ही नहीं, यहाँ पे साचोर हाड़े जाला कतरा हाथ ऊपर करो, अच्छा 2 या 3 ही है। तो भागशाली मारवाड़ किया। इसके अंदर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, साचोर हाड़ेजा वाले जो हमारे गच्छाधिपति राजशेखर सूरी महाराज साहब, रत्नाकर सूरी महाराज साहब, सोम सुंदर सूरी महाराज साहब भी जो भी साचोर के अंदर में बैठे हैं, मेरे को ये पोजीशन से पहले सब लोग बोल रहे थे कि साहब बहुत तो पोजीशन में हाड़े जा जानो है। बोला ठीक है, तब तक तो आओगे ना? बोला हाँ। लेकिन उन लोगों ने क्या किया मालूम है? जिन लोगों को मारवाड़ जाना था, उसके परिवार से भी जाने वाले थे, वो कोई गए नहीं। पूरा का पूरा पोजीशन मोहराते की दो, અને રાતે તો પૂરા સાચોર પટ્ટી, मतलब जितना आर्टिकेशन आदित्य आकाश थी आजू-बाजू में जितना भी लोग था, एक होटल क्या बोलते इसको, सीपी टाइम, यहाँ से भी लोग वहाँ पे आते थे, ठाकुरदास से भी आते थे बाजू में से। तो भागशाली कहने का मतलब उनके साथ में बहुत अच्छा परिचय हुआ। तो भागशाली उन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इसके कारण वहाँ पे भी प्रार्थना जैन समाज के अंदर में भी बहुत अच्छा चल रहा है। कल वहाँ पे भरगोड़ो भी निकला जबरदस्त। ट्रस्टी लोग बोले साहिब इतना भरगोड़े के अंदर कोई पब्लिक आती नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की कैसी कृपा, कनक श्री महाराज साहब, गुणशेखर श्री महाराज साहब और कीर्तिवर श्री महाराज साहब की, कि वहाँ पे भरगोड़े के अंदर बोले साहब हम तो 5 यहाँ से घूमते घूमते फटा वहाँ पे आ जाते, उसके बाद स्वामी वात्सल्य करने के दूसरी जगह चले जाते। स्वामी वात्सल्य के अंदर 1100 लोग आते, और भरगोड़े के अंदर कितना 50 या 60 लोग। भागशाली कल उसके अंदर इतने सारे लोग देखने की प्रयत्न हुआ, तो वो लोग बहुत खुश हुए। भागशाली खूब को, क्योंकि देव गुरु कृपा हमारे देव श्री महाराज ने गुरु के ऊपर बहुत अच्छा समझाने के प्रयत्न किया। तो ऐसे गुरुओं की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, उसका बेड़ा
पार होता है। तो इसे गुरुदेव के चरणों को से वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर एक विश्राम करता हूँ। बस एक ही लास्ट कर, मनुष्य जन्म अनमोल अनमोल इस मिट्टी में मत डोल, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल इस मिट्टी में मत डोल, अब जो मिला है कभी न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मेरे नाम मत बोल जीवन में रस घोल, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इतना क्या करना बोलाओ तो सकल संघ को वार्षिक संवत्सरी धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, अष्टानिका प्रवचन में आचार्य श्री लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने 5 कर्तव्य के वक्त अंतिम कर्तव्य चैत्य परिपाटी बताया है और वार्षिक 11 कर्तव्य में एक कर्तव्य यात्रात्रिक बताया है। जो चैत्य परिपाटी बताया है वो कल सुबह में इधर से 6 बजे प्रारंभ होगी और वार्षिक 11 कर्तव्य में एक कर्तव्य यात्रात्रिक बताया है। उसमें 3 प्रकार की यात्रा आती है। सबसे पहले नंबर की यात्रा अष्टानिका यात्रा, यानी कि हमारे संघ में पंचानिका या 8 दिवसीय या 11 दिवसीय एक प्रकार का प्रभुमय भक्तिमय जुड़ने का प्रयत्न करना, प्रभु की भक्ति में जुड़ना, ऐसा एक वातावरण और अवसर प्राप्त करना, उसी का नाम अष्टानिका यात्रा कहा जाता है। दूसरे नंबर की एक यात्रा है, जो यात्रा का नाम है रथ यात्रा। यात्रा के प्रारंभ में रथ की बात बताई है, यानी कि जहां पे तीर्थंकर भगवान का रथ हो, जहां पे परमात्मा की भक्ति स्वरूप इस प्रकार का कार्यक्रम हो, उसी को रथ यात्रा कहा जाता है। तीसरे नंबर की यात्रा तीर्थ यात्रा कही जाती है, यानी कि हमें साल के अंदर कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए। तो भाग्यशाली ऐसा प्रकार का आज का मंगलमय दिन को हमने चतुर्वेद संघ के साथ साधु साध्वी श्रावक और श्राविका के सह यह रथ यात्रा भावपूर्वक तरीके से, भव्य आयोजन पूर्वक तरीके से संपन्न किया। भाग्यशाली यह रथ यात्रा कहा जाता है कि दर्शनाचार के अंदर 8वां नंबर का आचार शासन की प्रभावना का बोला गया है, यानी कि जब जब भी यह रथ यात्रा बरघोड़ा इत्यादि होता है, तब शासन की एक बहुत बड़ी प्रकार की प्रभावना होती है। शासन की प्रभावना बहुत जरूरी मानी जाती है। शासन की प्रभावना है तो ये हमारा आज का शासन, यानी कि इस प्रकार 5वें आर्य के अंत भाग तक पहुंचेगा, उसका भी एक कारण शासन की प्रभावना है। यानी कि जो जैन के अलावा अन्य दर्शन वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो भी जैनों का ये रथ यात्रा वरघोड़ा को देखते हैं, तब उनके मन के अंदर भी एक आनंद आता है। उनको भी होता है कि कितने समृद्धि संपत्तिवान लोग
शानदार तरीके से अपने परमात्मा की भक्ति स्वरूप देव और गुरु के साथ इस प्रकार बरगोड़ा का प्रारंभ किया। अलग अलग जिनाले के अंदर चैत्य परिपाटी इत्यादि करते हैं और वापिस पुनः अपने संघ की ओर जाते हैं। तो भाग्यशाली ये भी एक प्रकार की शासन प्रभावना की बात कही जाती है। लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहब भी यही बता रहे कि अपने अपने जीवन काल में जब जब भी शासन प्रभावना का मौका मिले, शासन प्रभावना की बात आए, तब कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। शासन प्रभावना के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि आज हमें जो जिन शासन मिला है उनको हमें वफादार रहना चाहिए। और चैत्य परिपाटी यानी कि परमात्मा ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, वो उपकार जैसे हमारे बीच में देव श्रवण विजय जी महाराज साहब ने जिस प्रकार की बात बताई कि देव और गुरु दोनों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, तो वो उपकार का ऋण एक अदा करने का एक प्रसंग, एक अवसर, एक घटना, उसी का नाम रथ यात्रा बरगोड़ा या चैत्य परिपाटी कहा जाता है। तो भाग्यशाली इसी प्रकार अपने जीवन काल में रथ यात्रा इत्यादि होनी चाहिए। सकल संघ के अंदर हर संघ में इसी प्रकार रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है। भाग्यशाली कल सुबह में इधर से बराबर 6 बजे हम इधर से प्रारंभ करेंगे। बराबर इधर से वीपी रोड होते हुए अलग अलग जो भी जिनाले आते हैं वो जिनाले को जुहारेंगे। सबसे पहले वो विल्सन स्ट्रीट के अंदर आया हुआ खतरगंज जैन संघ साचोर, वहां पे जाएंगे, जिनाले के अंदर परमात्मा को जुहारेंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे, वापिस पुनः वीपी रोड के ऊपर आते हुए अर्थ के स्थल में जाएंगे, वहां से आगे बढ़ते हुए नवीनाथ जिनाले चिमनी साइड की ओर आता है, वहां पे जाएंगे, वापिस आगे बढ़ते हुए बराबर प्रार्थना समाज चंद्रपुर स्वामी जिनाले जहाँ पे आचार्य भगवंत की निगरानी मिश्रा है, वहां पे जाएंगे, वहां पे आचार्य भगवंत को गुरुवंदन इत्यादि और मंगलिक इत्यादि सुनेंगे। वहां से पुनः आगे बढ़ते हुए हम आदेश्वर जिनाले शांतिनाथ जिनाले होते हुए वापिस इधर आएंगे। इस प्रकार का हमारा रूट रहेगा और इसी प्रकार ये चैत्य परिपाटी शानदार तरीके से परिपूर्ण होगी। इसलिए भाग्यशाली कल सुबह में 6 बजे शार्प हमें सभी को इधर से निकलना है। कोई भी भाग्यशाली बराबर समय से आए। जैसे मैंने प्रदूषण के दौरान आप सभी को कहा था, उसी प्रकार खाली हाथ आना नहीं है। हाथ ऐसे बस खाली हाथ घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आना नहीं है, परंतु परमात्मा की भक्ति करने के लिए जाना है। शानदार तरीके से आना है। हाथ में कुछ ना कुछ पूजा का सामान लेके आना है। हर जिनाले के अंदर कुछ ना कुछ रखना है। जेब इत्यादि भी भर के आना है। कुछ ना कुछ सोना चांदी या फिर रुपीस इत्यादि डालना है। धन भंडार भरना है। उसी प्रकार करना है और भाग्यशाली इसी प्रकार शानदार तरीके से यह चैत्य परिपाटी का कल शुभारंभ होगा। बराबर करेक्ट 6 बजे शुरुआत हो जाएगी। किसी की भी राह नहीं देखी जाएगी। सभी भाग्यशाली समय से आने का प्रयत्न करें। भाग्यशाली पर्युषण महापर्व भी शानदार तरीके से हो गया। आप सभी भाग्यशाली को खूब अंदर से साधुवाद देता हूँ कि जब भी 9 बजे से लेते हुए कुछ दिन 1:30 बजे तक भी प्रवचन चले थे। अंतिम प्रवचन 7वां प्रवचन 7वां और 8वां वो कुछ 1:15 बजे तक भी चले थे। तो अभी भाग्यशाली आप लोगों ने इतनी बड़ी तपस्या करते हुए भी बहुत शानदार तरीके से पूरा प्रवचन कंप्लीट सुनने का प्रयत्न किया। विशाल संख्या के अंदर लोग आए और उसी प्रकार ये प्रवचन इत्यादि के अंदर जुड़े। उसके अलावा सिद्धि तप की भी जब भी बात कही थी और भाग्यशाली आप लोगों ने खूब शानदार तरीके से सिद्धि तप किया। सिद्धि तप का पारना भी हर्ष उल्लास पूर्वक, जो हमने धारा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा शानदार तरीके से ये पारना का उत्सव होगा, परंतु वो भी बहुत शानदार तरीके से हुआ। हर जगह पे ये पूरे साउथ बम्बई के अंदर हर जगह पे ठाकुर द्वार जैन संत की वाहवा होने लगी।
कि वहां पे हर जगह पे पारना उत्सव भी हुए, परंतु शानदार तरीके से ठाकुर द्वार जैन संघ के अंदर भी हुआ। तो भाग्यशाली उस सभी का पूरा श्रेय हमारे ठाकुर द्वार जैन संघ के ट्रस्टी गण को है। उसके अलावा समर्पण मंडल वाले जो भी भाग्यशाली है, पुण्यशाली आत्माएं, उन्होंने भी बहुत साथ सहकार दिया। जब भी मैंने जो भी लाइन दूरी के मुताबिक मैंने जब भी कहा ऐसा नहीं ऐसा करना है, यूं नहीं वैसा करना है, मैंने तो पहले दिन से जब चतुर्मास का प्रवेश नहीं हुआ था ना, तब से ही ये जो भी आगेवान लोग हैं बराबर है, उन लोगों के साथ मीटिंग की थी। एक मीटिंग हमारे अर्थ केसल में हुई थी, एक मीटिंग इधर हुई थी चतुर्मास के शुरुआत में, यानी कि प्रवेश भी नहीं हुआ था तब एक मीटिंग बाबू अमीचंद जहाँ पे बालकेश्वर हम आए थे आप लोग, वहाँ पे हुई थी। तभी भी मैंने कहा था कि मेरे को तो जैसा तैसा चलेगा नहीं, मुझे तो यूं करना है, मुझे ऐसा चलेगा, मुझे ऐसे सबको बिठाना है, उसी प्रकार प्रवचन सुनाना है, शानदार तरीके से वो आयोजन होना चाहिए। ये सब कुछ समर्पण मंडल वाले, क्योंकि मेरे को तब विचार आया था, सही बता दूं तो मेरे को ऐसा हुआ था कि समर्पण मंडल वाले को मैं पहचानता नहीं हूँ। ठीक है कि थोड़ा बहुत सुना था, क्योंकि नौपजी की होली के वक्त प्रवचन देने के लिए आता था, तब समर्पण ग्रुप वाले लेके आते थे और वापिस छोड़ने के लिए आते थे। रास्ते में 5-10 मिनट कुछ बातें होती थी और तब वो दरमियान पता चला कि इधर का कोई समर्पण ग्रुप है, जोरदार है, शानदार है, परंतु मालूम नहीं था कि इतना एक्टिव होगा। परंतु भाग्यशाली चतुर्मास के पहले तो लगता था कि ये ग्रुप कोई काम में आएगा नहीं, इसलिए मैंने संघ वाले ट्रस्टियों को भी पर्सनली पूछा था कि यदि ये ग्रुप काम में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अलग से जो हमारा अलग अलग प्रकार के कनक प्रभु जैन मित्र मंडल या तो फिर उसके अलावा जो भी ग्रुप है उनको बुलाओ। तब ट्रस्टियों ने कहा कि महाराज साहब आपको लगता है, परंतु एक बार आके तो देखो, हमारा समर्पण मंडल ग्रुप है, शानदार है। और उसके बाद उनके साथ चर्चा हुई, उनके साथ बातचीतें हुई, तब लगा कि नहीं हकीकत में कुछ एक्टिव है। मैंने बोला कि ठीक है, बातें तो होती है, आगे देखता है कार्य कैसे होता है। धीरे धीरे करते करते हुए एक एक को देखा, एक एक को जिस प्रकार कहा। उसके बाद कई बार रात्रि को भी मीटिंग बुलाई थी, उनको कहा था कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, मुझे यूं करना है, ऐसा कार्य करना है, जैसा तैसा चलेगा नहीं। तब उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, आप जब भी जैसा जैसा भी बोलोगे ऐसा ऐसा हम करेंगे। तो भाग्यशाली शानदार तरीके से ये पारना का उत्सव भी हुआ। उसका पूरा श्रेय हमारे ठाकुर द्वार जैन संघ के ट्रस्टी गण के ऊपर है, क्योंकि ट्रस्टी गण ने इतना शानदार तरीके से, भरोसामंद तरीके से, शानदार तरीके से ये कार्य किया है। हमने सब बराबर बोला। कहता हूँ कि जब वहाँ पे तपस्वी लोग पहुँचे, उसके पहले ये पंकज भी इत्यादि ट्रस्टियों ने मुझे कहा था एक दिन पहले कि गुरुदेव आप सुबह एक बार आ जाना, आप देख के लेना, फिर आपको जैसा जैसे वैसा ही हम करेंगे। मैंने बोला कि नहीं, एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। तपस्वियों को बैठने के वक्त भी कहा था कि आप चिंता मत करो, आपके मेहमान हमारे मेहमान हैं, ये ट्रस्टियों के ऊपर भरोसा रखो, हमारे ऊपर भरोसा रखो। हकीकत में वो दिन कमलेश ने मुझे कहा, देखो भाई महाराज साहब, देखो तपस्वियों ने हमारे ऊपर भरोसा रखा है तो बराबर किया है ना। मैंने बोला नहीं, बहुत शानदार किया है। और भाग्यशाली हकीकत में जब आप लोग वहाँ पे आए, उसके पहले मैं एक बार जाके आया, क्योंकि ट्रस्टियों ने बोला कि महाराज साहब पहले से हमें बता दो, फिर सबके बीच में हमको बोलना नहीं, हमको कहना नहीं कि यूं नहीं ऐसा होना चाहिए, यूं नहीं ऐसा होना चाहिए, बाद में कुछ नहीं होगा। इसलिए आधा घंटे पहले आप आओ, देखो आपको कुछ ना कुछ चेंज करवाना हो तो कहो। तो मैंने बोला ठीक है। और भाग्यशाली हकीकत में ट्रस्टियों को भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले से उनकी आंख खुल गई और उनको लगा कि नहीं चलो पहले से माधव बाग बुक कर देते, और उन्होंने बुक करवा दिया। भाग्यशाली नहीं तो छोटी छोटी बाड़ियाँ इत्यादि मिलती तो शायद इतना शानदार तरीके से ये आयोजन नहीं हो पाता। पर ये पूरा श्रेय ट्रस्टियों को है, समर्पण ग्रुप मंडल इत्यादि वाले को है। उनके अलावा बैठने के वक्त जो बहनों का भी मंडल आता था, 4-4, 5-5 जो भी मंडल है, देखो मुझे नाम याद नहीं है इसलिए एक का भी नाम नहीं लेता हूँ, परंतु सभी बहनें समझ लेना। तो भाग्यशाली जो भी मंडल वाले हैं उनको भी चतुर्मास के प्रवेश के पहले मीटिंग बुलाई थी इधर दोपहर के वक्त, और इस प्रकार
उन्होंने भी कहा था कि महाराज साहब जब जब भी हमारी जरूरत पड़े हमें याद करो, हमें एक प्रकार को याद करना, हमको पुकारना, हम तुरंत ही आएंगे। तो इसी प्रकार बहनों ने भी बहुत साथ सहकार दिया है और उसके अलावा सकल संघ ने बहुत शानदार तरीके से साथ सहयोग इत्यादि दिया, जिस कारण से ये सिद्धि तक बहुत शानदार तरीके से हो गया। शायद मुझे लगता है कि ठाकुर द्वार के इतिहास में इतनी बड़ी तपस्या शायद पहली बार ये हुई है और इतना ठाक मार पूर्वक पालना का उत्सव भी शायद पहली बार हुआ है। तो भाग्यशाली इसी प्रकार आप सभी तपस्वियों को भी खूब खूब अनुमोदना करते हैं कि यदि आप तपस्वी इसमें नहीं जुड़ पाते तो फिर कोई भी प्रकार का आयोजन नहीं हो पाता, इसलिए उसका पूरा के पूरा श्रेय आप लोगों को है, क्योंकि भाग्यशाली बोलना मेरा काम है। मैं तो बोलता हूँ कि आप सिद्धि तक करो, हो जाएगा, चिंता मत करो। आप उत्तर पालना करो, दूसरा दिन न हुए तो घर पे पालना कर लेना, चिंता मत करना, कोई आपको कोई बोलेगा नहीं, डांटेगा नहीं, आप करते रहो। और ऐसे करते 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 हुए आपने शानदार तरीके से कर दिया। तो भाग्यशाली आप सभी को भी खूब खूब साधुवाद देते कि खूब शानदार तरीके से इस सिद्धि तक इत्यादि का आयोजन हुआ। और तो भाग्यशाली अभी भी जो 2 महीना इत्यादि बाकी है उसके अंतर्गत हमें अलग अलग नित्य नई नई प्रकार की शिविरें, नित्य नई नई प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि के द्वारा प्रवचन इत्यादि की धारा शुरू हो जाएगी। बराबर 8 तारीख गुरुवार की दिन से इसलिए सभी भाग्यशाली वापिस पुनः गुरुवार से बराबर 9:15 बजे प्रवचन इत्यादि शुरू हो जाएगा। भाग्यशाली उसके अलावा आज बहुत बड़ा आनंद की बात यह है कि भाग्यशाली भाई महाराज साहब यानी कि देव श्रवण विजय जी महाराज साहब, जिनको बराबर मेरी दीक्षा के बाद में हम मिले ही नहीं, आज पहली बार मिले, क्योंकि हमारी साउथ की यात्रा हुई थी, उनकी साइड गुजरात के अंदर डंका बजा रहे थे, इसलिए भाग्यशाली मिलना तो हुआ नहीं, परंतु आज पहली बार इधर ठाकुर द्वार जयसर के अंदर उनका और हमारा मिलन इत्यादि हुआ है। तो भाग्यशाली इसी प्रकार आज बहुत एक सुवर्ण अवसर मिला और हकीकत में मैं कहना चाहता हूँ आज खुशी की बात है कि हम दोनों भाई वापिस पुनः इसी प्रकार मिलने का प्रयत्न हुआ है। करीब 9-10 साल के बाद इसी प्रकार मिले हैं। तो भाग्यशाली मैं उनको भी कह रहा हूँ आप सभी के बीच में कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम और अगर हो सके तो पूरा बाकी का जो चतुर्मास है आप इधर ही रहो, आपके साथ में और आपका प्रवचन का आनंद हमें भी मिलेगा, हम भी कुछ आपके द्वारा सीखेंगे और उसी प्रकार अपने आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयत्न करेंगे। अनुकूलता हो तो आप भी बाकी के चतुर्मास के वक्त आधा चतुर्मास इधर दो ठाकुर जयसर को और इसी प्रकार रहते हुए शानदार तरीके से इधर भी शासक का डंका बजे। बस यही परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ। मित्रा की आज्ञा को कुछ भी बोला तो इच्छा આપનો આશીર્વાદ આપ્યો છે એવી રીતે આપણે આશીર્વાદ આપ્યો એટલે રીતે લાગે છે આપણે બધા શિક્ષા લેવાની છે આચાર્ય બોલે કે આ શાસન માતા પિતા શાસન આપી દીધો વરાઈ દીધો વરાઈ પછી પાછી ખબર જાય પાછી ખબર ઘરમાં વરાઈ પછી તો કોઈ ખબર નહીં
એ લોકો દાદા ચલો चलो सुनिए દાદા બંધ થઈ ગયા મારી ભાષા સમજી કે મારી દાદા હતા દાદા કે જલ્દી પછી મન પકડાઈને જાય એટલે જલ્દીથી ચાલુ કરો મારું તમારું ક્યાં જતું હો અને આ ભણવામાં પાસે જ આપતો હતો ભાઈ તો દાદા હમણાં વિચારો યોગ નથી હમણાં વિચારીએ ભાઈ ભાઈ પછી મન પકડાઈ જાય તો મેં તો વિચાર તો યોગ પછી લેવા બાકી નહીં લેવાય તમારે જબરજસ્ત જાહેરમાં બોલે ચાલી થઈ ગયું બિલકુલ હમણાં પીછા પૂછાઈ દાદા કે ના હમણાં પીછા કરી બિલકુલ નહીં અમારે તો કરાઈ દેશે હવે ભાવ બદલે છે તો અમારા બધા નામ અપાય એટલે જાય યોગ કરતો ખાય એમ કરતા કરતા આજે યોગ કરતો પછી પીછા લેવાય નહીં પછી જ્યારે બધા ભૂલી ગયા અને યાદ યોગ આવ્યો ત્યારે પછી એના ઘરના પંપાનું કહ્યું હવે યોગ આવી ગયો છે ચલો દીક્ષા આપો આ પૈસા પણ મુકાઈ દીધો હવે યોગ આવી ગયો ચલો દીક્ષા આપો પછી બધા તૈયાર થયા અને તૈયાર થઈ દેશો મારે પાસે ઉચ્ચ કઢાવવા માટે 22 જણ નક્કી કર્યા 22 જણ કેટલા જતા ના આવ્યો એ રોજો થઈ ગયો એટલે ઈશ્વર મારે ત્યાં હમણાં આવતા નહીં હમણાં દીક્ષાનું બોલ નથી આપો હમણાં દીક્ષાનું જો દીક્ષાનું બોલ ના આપે તો દીક્ષા નિષ્ફળ જાય પછી થાય નહીં પછી આ દિવાળીએ ટાઈમ દિવાળીએ ટાઈમ હવે આ લોકો ટિકિટ કેન્સલ કરાવી એટલે સાહેબ દિલ્હી ગયો હતો તાત્કાલિક તો આ જલ્દી અને ત્યાં વિમાનમાં આવ્યો અને આવી તાત્કાલિક ત્યાં મોકલ્યો આ દિવાળીએ ટાઈમે વિમાન કે આ તો આજ કાઢવું પડે ના કાઢવું કોઈ હિસાબે જ્યાં આપને મોકલ્યો ભાવને પૂર્ણ કરે તમારા જન પ્રકારો લઈ ગયો કે સાહેબ ગુરુ આપો ગુરુ બધા પૂછો આ હું ગુરુ બધાની કે મારા ભાઈ મારે છે એવા જાય ને તૈયાર થઈ તો કોઈને કહેવાનું નહીં છૂટી રીતે ખાનગી રીતે કહેવું ખાનગી રીતે તૈયાર થયા અને ગાયને રૂમ બધાયું અને એ લખી આવ્યો આવ્યો અચાનક ખબર ચમકી લોકોને અચાનક આવ્યા છે ઘરમાં આરસોનો આંસુ આવ્યો એટલે થઈ ગયો છે કઈ ના બને આરસોનો આંસુ આવ્યો બહુ સારું થઈ ગયો થઈ ગઈ પછી આપને આગળ બંધનો મેળો હવે આપણે હવે ખેડતો परमात्मा ने स्नान देते हैं माँ को साथ में अभी तक मैंने माँ को स्नान उसमें कोई छूटा नहीं है 4 महीने 2 महीने में बाद में ले लेता हूँ
धीर गंभीर सुरो सोए सुरवर मुनिवर सोए मोए शब्दे शब्दे प्रगट थके जा स्नेह तड़ी सर्वाणी मन चतुर्मास के बाद में अपने ठाकुर द्वार में रखो। दीक्षाનો પ્રોગ્રામ તો એક તો લાભ આપો ઠાकुर द्वार में 2 महीना में सब निकाल देना। 2 महीना टाइम है तुमने। परम पूज्य मुनिराज संगी भाइयों बहनों આવતીકાલે બરોબર ચૈત્ય પરિપાટી सुबह 6 बजे चालू हो जाएगा। कल का चैत्य परिपाटी लाभार्थी परिवार है श्रीमान लालचंद जी चौकचंद जी चौहान सादड़ी लालचंद जी चौकमन जी चौहान साड़ी तरफी चैत्य परिपाटी लाभ लीधो संघ तरफी खूब खूब धन्यवाद है। और बरोबर 6 बजे गुरु भगवान ने रूट विधायक हुए आप बरोबर 6 बजे चालू रहेगा। जो भी आगे पूरे आवे तो मुझे पूरे की आप ज्वाइन कर दीजिए। बनावती स्वामी भक्ति नो आयोजन आप वालीसर गवर्नमेंट ताकि मैं आया सब ज्यादा बुलावा और भाग्यशाली और गुरुदेव ने जो गुरुगांव की गुरुदेव पधारी आए हैं उन्होंने विनती है कि हर पार्टी के गवर्नमेंट में हमारे क्या लाभ आपको काल मंगलवार जाऊँ गुरुगांव એટલે ગુરુ ભગવાન ને વાત કરી લો કોઈ અગર આ વિનંતી કરી હવે ગવર્નમેન્ટ ને યાદ રાખો ક્યારે પાછો મત કરો भाग्यशाली हमारे चतुर्मास के दरमियान साकली आमेल और साकली अट्ठम का भी भव्य आयोजन हुआ है। अब तक साकली अट्ठम बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। आज से एक साकली अट्ठम शुरू हुआ है। जो भाग्यशाली ने आज से साकली अट्ठम शुरू किया है वो सिद्धि तप के तपस्वी है, यानी कि सिद्धि तप करने के पश्चात उन्होंने आज से साकली अट्ठम शुरू किया। भाग्यशाली आज के 3 दिन तक उनका साकली अट्ठम चलेगा। उसके बाद की साकली अट्ठम की जगह खाली है, इसलिए यदि आपकी भावना हो
एक सिद्धि तप के तपस्वी ने किया, और यदि इधर बाकी के जो सिद्धि तप वाले, क्योंकि सिद्धि तप वाले मुझे कहते थे कि हमारे से 4-5 उपवास तक तो कुछ होता नहीं बराबर। इसलिए ये 3 उपवास की बात है। यदि आपकी भावना हो, आपकी इच्छा हो, अभी तो आपको प्रैक्टिस हो गया है कि 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास तक तो टिकता ही नहीं, आप ऐसे खेलते खेलते हो जाता है। तो भाग्यशाली 3 उपवास करना है। यदि जिसकी अनुकूलता हो तो आप पुनर्विवाह का संकल्प करें और उनके पास नाम लिखवाए। बराबर आज से 3 दिन तक जो अठम चलेगा उसका नाम आ चुका है, उसके बाद का नाम बाकी है। जिनकी भी भावना हो तो भाग्यशाली अठम के अंदर, सातवीं अमेल के अंदर इत्यादि के अंदर भी नाम लिखवाना। बराबर प्रवचन की वापिस प्रवचन रिस्टार्ट होएगा हमारा 8 तारीख गुरुवार के दिन से। बराबर ये पुनः वापिस प्रवचन की शुरुआत होगी, इसलिए भाग्यशाली विशाल संख्या में वापिस पुनः इसी प्रकार आने का प्रयत्न करें। ठीक है, चलो गुरुवंदन।